Assalamu alaikum everyone. A lot of you guys have joined the session and let us formally start this session. So आज हम लोग बात करेंगे करंट इकोनॉमिक आउटलुक की, पाकिस्तान की। ये क्या मायने रखती है एक एवरेज इन्वेस्टर के लिए, एक एवरेज पाकिस्तानी के लिए। जैसे कि रिसेंटली इंटरेस्ट रेट काफी हायर नंबर से ड्रॉप हुए हैं। एक एवरेज इंडिविजुअल, एक एवरेज पाकिस्तानी के लिए सारी इंफॉर्मेशन क्या मायने रखती है, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। Basim is our guest speaker for today. Basim is Chief Commercial Officer here at Dow PropTech, and I'll like to hand it over to Basim for your addressing. Over to you, Basim. Thank you, Saad, and thank you everyone for joining in here with us today. So, before we talk about the economic conditions, the economic system, the purpose of having this webinar with all of you is a constant engagement. हर हफ्ते हमारे पास कुछ नए लोग join in कर रहे होते हैं, and we want कि हम कोई ना कोई जो भी आजकल की न्यूज़ चल रही होती है उसके ऊपर भी बातचीत करें। वो लोगों को किस तरह इम्पैक्ट करती है, लोगों के डिसीजंस को किस तरह इम्पैक्ट करती है, उसके ऊपर भी उनके साथ बात करें। And as new people are joining in, they have some questions regarding our system. ये कैसे काम करता है, what changes are we bringing in? So what we try to do in this particular session is break it down into two parts. So एक part में हम DAO की बात कर रहे होंगे, DAO क्या करता है और किस तरह से चीजों को लेके चलता है, and what problems are we solving here. एंड सेकेंड बात हम करेंगे कंडीशंस की, जिस तरह साद ने बात की इकोनॉमिक कंडीशंस एक आम बंदे को किस तरह से वो इम्पैक्ट करती हैं और आपके लिए ये समझना क्यों जरूरी है. So we often hear that the best investment that you can make is in your learning, and right now thanks to DAO, thanks to me, आप लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, but you can get a return which is multiple folds just by learning how the economic system works and how इसके अंदर जो भी changes हो रहे हैं, they're impacting you, they're impacting me, they're impacting the industry and everything going on around us. So start करते हैं with me presenting कुछ slides Dow PropTech की ऊपर, and then let's jump on to the economic topic जो कि I'm sure कि आप सब भी मेरे जितना ही excited होंगे जानने के लिए. My screen is visible to everyone. In case there's any issue, Saad, Mueed, anyone, they can let me know just by dropping in a text. Okay, so Saad, it's visible, right? Yep, it's visible. It's great. Perfect. So बात करते हैं कि Dow PropTech जो है क्या कर रहे हैं and क्यों कर रहे हैं. So इस चीज के ऊपर स्टार्ट करने से पहले I would want to start with the industry we're working in. So हम रियल स्टेट के अंदर काम करें and रियल स्टेट की डेवलपमेंट वाली साइड के ऊपर काम करें, and through technology what we're trying to do is कि हम इस पूरे सिस्टम को जो एक कन्वेंशनल तरीके से चल रहा था, we're trying to improve this. इसके कुछ प्रॉब्लम्स थे, we picked out on those problems and we're trying to solve those. Why real estate is important to us? I'll start from here. So as humans, हम लोगों को real estate जब तक हम लोग जिंदा हैं चाहिए. We need places to live, we need places for our healthcare, we need places to work, we need places for our recreational activities. इन सब चीजों के लिए हमें real estate की जरूरत है. हम लोगों की population दिन ब दिन grow करती जा रही है. पाकिस्तान का नंबर तकरीबन 2% and above है, जो Asian standards के लिहाज से काफी ज्यादा है. Even world standards के लिहाज से भी it's growing at a faster pace, which means we out of all need more and more real estate in the future. So इसके साथ साथ अगर हम देखें तो कुछ चीजें स्लाइड में भी आप सबको दिखाई नहीं है. लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हैं लोग, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज में मूव करना चाहते हैं. इवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी रियल एस्टेट और उसकी डेवलपमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज समथिंग जिसकी डिमांड तो एवर लास्टिंग है, एंड इट्स गोइंग टू स्टे देयर as long as you are alive, as long as I am alive. But इस डिमांड को बनाने में, बिल्ड करने में बहुत कम लोग पार्टिसिपेट कर पाते थे ड्यू टू सम चैलेंजेस. लेट्स हैव अ लुक एट वो चैलेंजेस क्या हैं और व्हाट आर वी डूइंग अबाउट इट. इस इंडस्ट्री के दो मेजर प्रॉब्लम्स थे. एक मसला था कि इसकी लिमिटेड एक्सेसिबिलिटी थी, बहुत कम लोग इसका हिस्सा बन पाते हैं. यानी कि एक एंट्री टिकट साइज ही हमने ऐसा एस्टैब्लिश कर लिया है कि आधे मुल्क की अवाम इसकी डेवलपमेंट में, इसकी डिमांड बनाने में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रही. It's very unfortunate. And इसके साथ साथ एक और भी रिस्क एसोसिएटेड है जो कि हाई फ्रॉड रिस्क है. And now why is that? Because
आपके पास लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। एक आम बंदे के पास वाइल मेकिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम डेटा अवेलेबल है जिसकी बेसिस पे वो अपनी कमाई हुई अमाउंट, जिंदगी पूरी मेहनत करके जो वो कमाता है, उसको जब उसने पार्क करना है तो वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके। सो लोगों के जहन में ये भी बैक ऑफ द माइंड चल रहा होता है। आई थिंक लाइक ऑल अदर इंडस्ट्रीज, टेक इज द सोल्यूशन ओवर हेयर एज वेल। टेक्नोलॉजी को अगर हम इस्तेमाल करेंगे, इन मसलों को सॉल्व करेंगे, तो ये सारी चीजें हमारे फेवर में आ जाएंगी एंड वी कैन help in fulfilling the demand of real estate in the times to come. So टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें, ब्लॉकचेन की बात करते हैं, दिस इज अ टेक्नोलॉजी जो कि लेजर मेंटेन करने के लिए स्पेसिफिकली यूज की जाती है। इन सिंपल वर्ड्स, कुछ लोग इसको बैंक्स के अंदर लेजर मेंटेन करने के लिए यूज करते हैं, कुछ डिजिटल करेंसीज में इसका यूज केस है। हमने इसको प्रॉपर्टी का लेजर मेंटेन करने के लिए यूज किया, क्योंकि प्रॉपर्टी के लेजर के अंदर भी जब डिस्क्रिपेंसी आती है तो लोगों को बहुत नुकसान होता है और ये हाई रिस्क ऑफ फ्रॉड इसी से एसोसिएटेड है। फिर हम लोगों ने डिजिटल टोकन्स बना के किस तरह एक बिल्डिंग को बेचा जा सकता है जो इसका हाई टिकट एंट्री का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकता है, इसके ऊपर काफी ज्यादा काम किया है। व्हेन आई विल डिस्कस कि ये क्या फिनोमेना है और किस तरह काम करते हैं तो ये काफी क्लियर हो जाएगा। एंड देन वी आर वर्किंग ऑन एआई पावर्ड एनालिटिकल सॉल्यूशंस। हमारा बॉट भी आ रहा है, हमारे इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर्स भी आ रहे हैं जो कि आप सबके लिए बहुत जल्द लाइव होंगे एंड दिल बी रेडी टू यूज। सो टोकनाइजेशन की बात करते हैं कि व्हाट इज टोकनाइजेशन एंड हाउ डज इट वर्क। इसको एक एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ हम आगे चलते हैं और हम ये डिस्कस करते हैं कि डाउ प्रॉपर्टी क्या कर रहा है। सो डाउ प्रॉपर्टी जो एक बिल्डिंग बनाने का प्रोसेस है, जो हमने बात की कि हमने रियल एस्टेट ऑफ द फ्यूचर उसकी डिमांड को फुलफिल करना है, और वो फुलफिल हम तभी कर पाएंगे जब ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सकेंगे एंड वी कैन पूल इन आवर रिसोर्सेज, build beautiful things and share all the profits together. So जब भी एक बिल्डिंग बनती है उसके अंदर काफी से लोग निग्लेक्ट होते थे पहले, बिकॉज उनके लिए वो एंट्री टिकट साइज बहुत ज्यादा हाई होता था। नाउ व्हेन वी कैन सेल डिजिटल टोकन्स ऑफ समथिंग दैट इज बिल्ट फिजिकली, यानी जितने फुट एक जगह पे असल में बन रहे हैं, अगर हम उसको डिजिटली रिप्रेजेंट भी करवा सकें और डिजिटली बेच भी सकें, तो इस प्रोसेस में हम काफी सारे लोगों को शामिल कर सकते हैं और सबके सब मिलके रिवॉर्ड उसका हासिल कर सकते हैं। सो एक एग्जांपल सेंटोरस की अगर हम लें, सो उसके अंदर अपार्टमेंट सबसे ज्यादा सस्ता तब था जब वो लॉन्च हुआ था। जब उसका स्ट्रक्चर बन गया और सबको एक बड़ी सी बिल्डिंग नजर आने लगी तो प्राइस भी बढ़ गई, क्योंकि वहां पे वैल्यू एडिशन हो गई, वहां पे डेवलपमेंट हो गई। एक बेयर पीस ऑफ लैंड वाज कन्वर्टेड इनटू हंड्रेड्स ऑफ अपार्टमेंट्स एंड अ कमर्शियल बिल्डिंग। नाउ everyone wanted a part of that, and when it was live all the brands came in, लोग उसके अंदर रहना शुरू हुए, उसकी प्राइस फर्दर बढ़ गई। बट इस सारे प्रोसेस के अंदर ना मैं इन्वेस्ट कर सका, ना आप लोगों में से काफी से लोग इन्वेस्ट कर सके। सो वी नीड टू मेक श्योर दैट वी मेक एवरीवन अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट, ताकि ओवरऑल पिक्चर में भी सबसे ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सकें और ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें। अगर इसको हम एक्सप्लेन करें, सो कोई भी बिल्डिंग जब डाओ के प्लेटफॉर्म पे आती है तो उसके डिजिटल टोकन्स बन जाते हैं और उनसे आप 3 से 4 चीजें कर सकते हैं। नंबर 1, आप अपने टोकन को बेच सकते हैं, जो एंड द assumption is कि 1 टोकन इज इक्वल टू 1 स्क्वायर फीट दैट इज फिजिकली प्रेजेंट ओवर देयर। नंबर 2, आप अपने टोकन से रेंट हासिल कर सकते हैं। नंबर 3, आपके पास अगर इतने इनफ टोकन हैं जो आपने एक्यूमुलेट कर लिए हैं, 500 स्क्वायर फीट हैं, 500 टोकन हैं, तो आप 500 स्क्वायर फीट या 500 टोकन्स का एक अपार्टमेंट अपने लिए डीमार्केट कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं कि आई वांट ओनली द फर्स्ट अपार्टमेंट ऑन द फर्स्ट फ्लोर। एंड ऑप्शन नंबर 3 इज ऑब्वियसली समथिंग जो कि एक और इनोवेटिव ऑप्शन है कि लेट्स सपोज आप एक प्रोजेक्ट से निकल के उसके टोकन्स सबमिट करके दूसरे प्रोजेक्ट के टोकन्स लेना चाहते हैं, तो दैट्स पॉसिबल एज वेल। सो दिस हैज ओपनड अप some opportunities that were once reserved only for a few. So इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे, but I would want के हम कुछ टोकनाइजेशन और इस तरह के सिस्टम्स की एग्जांपल्स देख लें कि दुनिया में इनमें क्या हो रहा है। सो आर्ट पीसेस जो कि बहुत महंगे हैं, उनकी टोकनाइजेशन पे दुनिया काम कर रही है। सो फॉर पीपल जो कि थोड़े आर्ट सेंट्रिक हैं, जिनके लिए वो आर्ट इज वेरी मीनिंगफुल, दे वुड वांट के इफ दे कैन नॉट अफोर्ड द होल पेंटिंग, दे कैन ओन अ पार्ट ऑफ इट। इसी तरह प्रेशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सो आई डोंट हैव टू नाउ वेट कि मैं 1 तोले जितने पैसे इकट्ठे करूं और फिर मैं वो सोना खरीदूं। आई कैन
directly park a few thousand rupees, a few hundred rupees, and I can buy gold through this. रियल एस्टेट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मैंने आपको बताया. एंड देयर आर अदर एग्जांपल्स एज वेल. आई लीव इट अप टू यू कि आप लोग कितनी इस पे मजीद रिसर्च करते हैं और इसको देखते हैं. अब हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज और इकोनॉमिक ट्रिगर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. एंड आई एम टेलिंग यू दैट 2025 कैन बी अ लाइफ चेंजिंग ईयर फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर अस एज वेल, फॉर ऑल ऑफ यू सिटिंग हियर लिसनिंग टू दिस एज वेल. कुछ इंडिकेटर्स हैं, उनको हम पुराने डेटा सेट की बेसिस पे जज करते हैं और हम देखते हैं कि हम आने वाले साल में क्या चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मंथ, जब कुछ न्यूज आई और कुछ इंडिकेटर्स चेंज होना शुरू हुए, आई थिंक वी कैन ऑल सी द पास्ट ट्रेंड्स एंड फोरकास्ट के आगे क्या होने वाला है, और उस लिहाज से हम अपने आप को प्लेस कर सकते हैं इन द नेक्स्ट बिजनेस साइकिल. सो सबसे पहले इकोनॉमी की बात करते हैं कि इकोनॉमी है क्या और हम किन इकोनॉमिक फैक्टर्स की बात करना चाह रहे हैं. दिस वाज समथिंग जिसके लिए आप सब इस सेशन को आप लोगों ने ज्वाइन किया एंड यू गिव अस योर टाइम. इकोनॉमी इज सम ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट आर हैपनिंग. यानी मैं एक बंदे को पैसे दूं और उससे कोई चीज लूं एंड देन वो किसी और को पैसे दे, उससे कोई और चीज ले. सो देयर इज अ प्रोडक्ट और अ सर्विस एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ द मनी दैट इज सर्कुलेटिंग, और इन सब को सम कर दें तो इकोनॉमी चलने लग जाती है. जिस तरह हम ये देखें, सो देयर इज अ स्पेंडर एंड देन देयर इज अ अर्नर. वन मैन स्पेंडिंग इज अनदर मैन अर्निंग, और इस स्पेंडिंग को इनेबल करती है कैश और क्रेडिट. या तो मैं खुद अपने पैसों से कोई चीज खरीदूंगा या मैं बैंक से लोन लेके खरीदूंगा, जिस तरह गाड़ी खरीदते हैं लोग, घर खरीदते हैं. अब जो क्रेडिट है, इसको समझना जरूरी है. सो क्रेडिट जो है बैंक से लिया हुआ लोन है, which is changing with the times. So interest rates हमारे फ्लक्चुएट करते हैं. हमने देखा उसका एक हाई भी है, उसका एक लो भी है, और वो चेंज भी करता रहता है. टाइम एंड अगेन स्टेट बैंक अनाउंसेस के क्या इंटरेस्ट रेट है जो अब मुल्क के अंदर चल रहा है, जिसकी बेसिस पे वो क्रेडिट अवेलेबल होगा. जब ये इंटरेस्ट रेट चेंज होता है और हम लोगों के लिए क्रेडिट को एक्सेस करना चेंज हो जाता है, तो हमारी इकोनॉमी भी साइकिल्स में चलती है, क्योंकि हमारे स्पेंडिंग पैटर्न्स चेंज हो जाते हैं. Now, let's have a look at how an economic cycle performs. जिस तरह हमने बात की कि ये साइकिल्स में चलता है, तो एक साइकिल का हाई पॉइंट होता है और एक साइकिल का लो पॉइंट होता है. जो हाई पॉइंट्स होते हैं और उसका बिल्डअप होता है, उसको एक्सपेंशन कहा जाता है और बूम कहा जाता है कि अब एक बूम आ गया. और जो लो पॉइंट की तरफ सारी चीज जा रही होती है, उसको कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है इन इकोनॉमी, एंड उसको रिसेशन कहा जाता है जब वो एक लोअर फेज से गुजर रही होती है. बट दिस इज हाउ एवरीथिंग गोज, दिस इज हाउ द ग्रोथ ट्रेंड हैपेंस, जिसमें हमारा एक लो फेज भी आता है, एक हाई फेज भी आता है, एंड इवेंचुअली वी मूव अपवर्ड्स थ्रू दिस पर्टिकुलर विजुअल दैट यू गाइस कैन सी. अब हम देखते हैं कि ये जो हाई पॉइंट्स और लो पॉइंट्स हैं जो इकोनॉमी में आते हैं, तो इनसे होता क्या है. सो लेट्स सपोज हम एक इकोनॉमिक बूम की बात करते हैं. सो इकोनॉमिक बूम इज एसेंशियली अ टाइम जहां पे हर बंदा खुश है. लोगों की स्पेंडिंग जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी हुई है. हर बंदा डिफरेंट तरह की चीजें कर सकता है, इन्वेस्टमेंट्स कर सकता है, गाड़ियां ले सकता है, डिफरेंट पर्टिकुलर चीजें हो सकती हैं. इस तरह का ये वो टाइम होता है जिसमें बिजनेसेस भी बूम कर रहे होते हैं, जिस तरह नाम से जाहिर है. सो जॉब्स भी बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही होती हैं, एंड एज न्यू पीपल आर ज्वाइनिंग न्यू जॉब्स, दे आर गेटिंग पेड, वो उन पैसों को स्पेंड भी कर रहे होते हैं. सो इन सारी चीजों की वजह से जो एसेट्स होते हैं उनकी प्राइसेस भी ऊपर जा रही होती हैं, और सबका कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा होता है. बट एन इकोनॉमिक रिसेशन इज द ऑपोजिट ऑफ इट. बिजनेसेस क्लोज डाउन हो रहे होते हैं, लोग नौकरियों से ले ऑफ हो रहे होते हैं, स्पेंडिंग ओवरऑल ही कम हो रही होती है, महंगाई ज्यादा हो रही होती है, एंड ओवरऑल एसेट्स की प्राइसेस भी नीचे आ रही होती हैं, और कॉन्फिडेंस भी बहुत शेक कर रहा होता है लोगों का. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इन सारी चीजों में अगर हम डीप डाइव करें तो क्या एक इंडिकेटर है जो जिसे हमें देखना चाहिए. जिस तरह हमने बात की कि इकोनॉमी को ड्राइव लोगों की स्पेंडिंग करती है, और वो स्पेंडिंग डायरेक्टली लिंक्ड है इंटरेस्ट रेट से, जिसकी बेसिस पे क्रेडिट अवेलेबल होता है. सो नाउ लेट्स लुक एट व्हाट हैपेंस व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर हाई एंड व्हाट हैपेंस व्हेन इंटरेस्ट रेट्स आर लो. एसेंशियली जब इंटरेस्ट रेट को हम बढ़ा रहे हैं, यानी हम कह रहे हैं कि आज आप मेरे से 1 करोड़ रुपए लो और मुझे 20% आपने देना है, वापस आपने 1 करोड़ 20 करना है, तो देयर वुड बी वेरी लो पीपल, लो नंबर ऑफ पीपल और लो काउंट ऑफ पीपल जो इस पर्टिकुलर चीज को अवेल करना चाहेंगे, बिकॉज कॉस्ट ऑफ एक्सेसिंग दैट कैपिटल इज वेरी हाई. अब आपको
पहले जहन में ये आएगा कि मैंने ये 20 लाख वापस करना है इस 1 करोड़ रुपए को एक्सेस करने के लिए, एंड आप वहीं घबरा जाएंगे। जब कम लोग क्रेडिट को एक्सेस करेंगे तो कम स्पेंडिंग होगी ओवरऑल, और जब कम स्पेंडिंग होगी नए बिजनेसेस भी नहीं खुलेंगे, ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो एक डाउनवर्ड ट्रेंड में जाएगी। जिस तरह हमने पिछला साल डेट देखा, जब हमारे इंटरेस्ट रेट्स रिकॉर्ड हाई पे थे, 22% पे थे, तो ओवरऑल बिजनेसेस वर क्लोजिंग डाउन, वी वर सीइंग कि महंगाई भी काफी ज्यादा थी और लोग बेयरली सेव कर पा रहे थे और बेयरली स्पेंड कर पा रहे थे। वेयर अगर हम इसका उलट देख लें कि इंटरेस्ट रेट्स लो है, नाउ एवरीवन कैन एक्सेस दैट कैपिटल इजीली। यानी आपको मैं बोलूं कि अब आप जो करोड़ रुपए हासिल कर सकते हैं, उसके बाद उसके साथ आपने मुझे 5 लाख ही वापस करने हैं। सबसे पहले तो आपके जहन में एक ब्रिलियंट आइडिया आएगा कि इफ आई बोरो दिस 1 करोड़ रुपी एंड आई स्टार्ट अ बिजनेस एंड आई अर्न 20-25 लाख रुपीज, सो मैं 5 लाख इनको वापस कर दूंगा एंड आई यूटिलाइज दिस मनी। सो न्यू बिजनेसेस कम इन टू प्लेस, there are new jobs that are created, and people that are associated in all this circle, they spend this amount. So ये दोनों particular trajectories हैं जो चल रही होती हैं। अब हम 30 साल का डेटा एनालाइज करते हैं कि जब भी मुल्क के अंदर महंगाई बढ़ती है तो बैंक के रेट्स किस तरह से चेंज होते हैं, एंड व्हाई डू दे चेंज। सो ये हमने एक लॉन्ग टर्म एवरेज ले लिए और उसके साथ इन 30 सालों के डेटा को हमने एनालाइज किया। सो अगर मैं आपको बताऊं कि हम लोगों के 1990s के अंदर इन्फ्लेशन 11.4 पे गई, सो इसको नीचे लाने के लिए हमारी ये जो ग्रीन लाइन है, हमारे बैंक का इंटरेस्ट रेट बढ़ा। जब ये 19.5 पे गया तो आपकी इन्फ्लेशन भी नीचे आना शुरू हो गई और आपका इंटरेस्ट रेट भी नीचे आना शुरू हो गया। इसकी एक और एग्जांपल 2008 वाला टाइम है कि हमारी इन्फ्लेशन 20.3% पे चली गई, यानी चीजें महंगे होने की स्पीड हमारी बढ़ गई है। सो हमने बैंक के रेट्स को बढ़ाया और जैसे ही बैंक के रेट्स बढ़ना शुरू हुए तो उसके कॉन्सिक्वेंस में आपकी इन्फ्लेशन वापस से ड्रॉप होना शुरू हो गई। इसी की एग्जांपल सबसे रीसेंट ले लेते हैं कि लास्ट कपल ऑफ इयर्स में जो हमने देखा। सो इन्फ्लेशन का नंबर लास्ट ईयर पीक पे था, 29% से महंगाई बढ़ रही थी। ये बहुत कंजर्वेटिव नंबर्स हैं। और बैंक का भी वो इंटरेस्ट रेट हमने देखा जो कि पहले हमने पिछले 30-40 सालों के अंदर कभी भी नहीं देखा था। 22% तक हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। वंस दिस केम इनटू प्ले, आप इमीडिएटली इफेक्ट देखें कि इन्फ्लेशन का नंबर हमारा ड्रॉप करता 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 इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर 9.6 से भी नीचे आ चुका है। सो एसेंशियली व्हाट वी कैन प्रिडिक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ट्रेंड इज कि हमारा इंटरेस्ट रेट भी मजीद नीचे आएगा। अभी 15% तक आ गया और अब मजीद नीचे आएगा। How we how my analysis on this would be, and how my team's analysis while working towards these numbers, वो यही होता है कि हर चीज अपने लॉन्ग टर्म एवरेज के ऊपर आके एडजस्ट हो जाएगी या उसके करीब करीब बैठेगी। सो हम लॉ ऑफ एवरेजेस को अकाउंट फॉर करते हैं। एंड ओवर हेयर आई वुड वांट कि मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज दिखाऊं जो कि आप लोगों को थोड़ा सा ये बताएगी कि हम लोगों की रिसर्च क्या होती है व्हाइल वी आर वर्किंग ऑन समथिंग। सो दिस इज हाउ वी एनालाइज ऑल ऑफ द डेटा। ये हमारी एक वर्कशीट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। यानी हम पैसे की सप्लाई, मनी सप्लाई, जो पैसा इस टाइम पे पाकिस्तान में सर्कुलेशन में, उसको देखते हैं। कितने नए नोट छप रहे हैं उसको देखते हैं। फिर कितनी महंगाई हो रही है हर साल, हम उस नंबर को देखते हैं। एंड देन हम उस हिसाब से जो हमारा इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसको देखते हैं। एंड देन दीज आर ऑल अदर फैक्टर्स जिसकी बेसिस पे हम लोग एक अपनी डिटेल्ड रिसर्च करते हैं कि मुल्क का टैक्स कलेक्टिंग रेवेन्यू कितना है, मुल्क के खर्चे कितने हैं, मुल्क ने नया लोन कितना लेना है और किस तरह से वो सारी चीज चलेगी। एंड देन वी कम अप विद दीज नंबर्स जिसके ऊपर हम लोग आपको आज बैठ के इकोनॉमी के ट्रेंड बता रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि जब भी ये इकोनॉमी में इन्फ्लेशन का नंबर ऊपर जाता है या इंटरेस्ट रेट का नंबर ऊपर जाता है तो इस पे क्या इफेक्ट आते हैं। एक ताल्लुक तो हमने देख लिया कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जब भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। सो जब भी हमने ये देखा कि इन्फ्लेशन बढ़ी और इंटरेस्ट रेट बढ़ा, ये टाइम तो अच्छा नहीं था। लास्ट टाइम की एग्जांपल ले लें जो कि लास्ट ईयर है हमारा, दिस इज कॉल्ड एन इकोनॉमिक रिसेशन और ये रेड से रिप्रेजेंट हो रहा है। वेयर एज देयर आर टाइम्स जबकि इस तरह के रिसेशंस के बाद देयर इज अ बूम।
जो कि हमेशा इसको फॉलो करता है जब इंटरेस्ट रेट्स नीचे आना शुरू होते हैं। तो ये हमने बूम वाला टाइम भी मार्क किया जहां पे हमारा जीडीपी बहुत अच्छा था, जहां पे हमारी इकोनॉमी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सो वी कैन वेरी सेफली से राइट नाउ कि जिस तरह से इकोनॉमी मूव कर रही है, जो इंडिकेटर्स अभी हमें नजर आ रहे हैं, 2025 विल बी द ईयर जिसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एवरीथिंग विल स्टार्ट पिकिंग अप। मनी सप्लाई इज अनदर फैक्टर जिसको हमें देखना चाहिए। ये क्या है कि टोटल करेंसी जो इन सप्लाई है इस टाइम पे हमारे मुल्क के अंदर, और जो फ्लो करेगी यहाँ पे अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज, स्टील, रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एजुकेशन। सो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा डिफरेंट चीजों के ऊपर। सो हम अगर इस नंबर को देखें तो हमारे पास ये बिलियंस में 17,798 बिलियन थे फ्रॉम 1947 टू 2019, यानी पूरे पाकिस्तान में इतने पैसे घूम रहे थे। वेरेज अगर हम सिर्फ पिछले 4 से 5 सालों को एनालाइज करें तो हमारे पास 18,760 बिलियन रुपीज आ गए हैं, जो कि ऑलमोस्ट पिछले 72 ईयर्स जितने पैसे हमने इस टाइम पे छाप दिए। नाउ व्हाट डज दिस मीन? सो इस छोटी सी एनिमेशन से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि व्हाट दिस मीन्स। सो जब भी हमारी करेंसी इन सप्लाई बढ़ती जाती है, प्राइसेस बढ़ती हैं। इसी तरह जो हमने अभी पहले ट्रेंड देखा, उस इसको हम इन्फ्लेशन कह रहे होते हैं, और इसी को कंट्रोल करने के लिए हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। नाउ हम इस सारी चीज को कंक्लूड करते हैं। हम कहते हैं कि 40 साल के ट्रेंड्स जो हैं उनको लेट्स एनालाइज। सो इन्फ्लेशन का नंबर हमारा लॉन्ग टर्म 8% पे था। बैंक्स का जो नंबर था वो 10.9% पे लॉन्ग टर्म बैठता है। सही है। आज की सूरत हाल ये है कि इन्फ्लेशन का नंबर हमारा बहुत करीब आ चुका है लॉन्ग टर्म एवरेज के, यानी 7.2 पे। बट जो बैंक का नंबर है दैट स्टिल एट अ हायर साइड 15%। So in the next 6 to 12 months, I can very safely, predict कि ये जो 15% का नंबर है, it will go down. एंड जब ये नीचे आएगा और ये सारी करेंसी जो अभी हमने पिछली एनिमेशन में भी देखी, इट विल सर्कुलेट, तो हर चीज की प्राइस बढ़ेगी, रियल एस्टेट और रियल एसेट्स की प्राइस भी बढ़ेगी। एंड नाउ इट्स द टाइम कि वी राइड दैट वेव। राइट नाउ वी नो कि इन सारी चीजों की प्राइसेस कम है, ये अंडर वैल्यूड है। आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कम पैसों में बहुत ही अंडर वैल्यूड एसेट मिल जाएगा जिसकी प्राइस इन द फ्यूचर बढ़ने वाली है। सो हम थोड़ा बहुत एसेट क्लासेस का एनालिसिस कर लेते हैं कि अगर एक बंदा 5 लाख से 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके क्या एवेन्यूज हैं, एंड इन द फर्स्ट प्लेस वो इन्वेस्ट करना ही क्यों चाहता है। सो एक चीज हमने देखी कि जब जब नए पैसे आते जा रहे हैं सिस्टम में, पैसे की कदर कम होती जा रही है। यानी अगर एक सिस्टम में मैं एग्जांपल लूं ऑफ 2 एप्पल्स एंड देयर आर 2 नोट्स, इफ द 2 नोट्स आर ऑफ 100 तो दोनों सेब 100 ईच के होंगे। बट इफ द एप्पल्स आर 2, अब इस साइड पे 100 के 10 नोट आ गए हमारे पास। सो अब वो 10 नोट वुड मेक 1 एप्पल ऑफ 1,000 रुपी ईच। So the value of that paper currency that we have is going down every day. Whenever there is a new rupee or new note printed, तो existing वाले की वैल्यू कम होती है। सो लोग devaluation से बचना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि if they place their money somewhere in some asset class, और वो it can make more money for them. So ये उनकी एक ideal state outcome होती है अपनी इन्वेस्टमेंट से। साथ ही उनके कुछ गोल्स भी होते हैं कि लेट्स सपोज मैं एक एक्स अमाउंट इन्वेस्ट करूं, उसको वाई अमाउंट तक ग्रो कराऊं, एंड देन आई अचीव अ सर्टेन गोल जो मैंने इससे एसोसिएट किया हुआ है, इस अमाउंट से एसोसिएट किया हुआ है। कुड बी अ कार, कुड बी अ फॉरेन ट्रिप, कुड बी एनीथिंग। सो अगेन यूजिंग द डेटा सेट, जिस तरह हमने पहले इकोनॉमी को एनालाइज करने के लिए एक डेटा सेट देखा, इसी तरह हमने 30 ईयर्स का डेटा एनालाइज किया। डॉलर, बैंक, गोल्ड, स्टॉक मार्केट, एक बनी हुई रियल एस्टेट और बनती हुई रियल एस्टेट का। कुछ की फाइंडिंग्स थी हमारी इसमें, और कुछ परसेंटेज नंबर्स थे जिनके ऊपर मैं चाहूंगा आप नजर डालें। सो डॉलर शायद 1-2 सालों में तो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता हुआ आपको नजर आया हो, बट अगर आप 30 सालों में देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर सिर्फ 7.8% ही दे पाया है अगेंस्ट रुपी। बैंक्स के अंदर जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया था, अगर वो पिछले 30 सालों में उन्होंने बैंक में पैसे रखे होते तो उनका लॉन्ग टर्म जो रिटर्न था वो 10.12% ही बनना था। ऑल्दो ये नंबर लास्ट ईयर 22% पे भी था।
गोल्ड की एवरेज भी इसी तरह 15% के ऊपर है अगर 30 ईयर का ट्रेंड देखा जाए, और स्टॉक मार्केट इज एट 11.84%। दो एनॉमलीज अगेन, रियल एस्टेट जो कि मेच्योर प्रॉपर्टीज हैं एंड द वंस दैट आर अंडर डेवलपमेंट। सो मेच्योर प्रॉपर्टीज ने जनरली, इसमें थोड़ी वेरिएंस थी इसके डेटा सेट में, 12% से 15% तक दिया लोगों को, डिपेंडिंग अपॉन देयर परचेजिंग प्राइस। किसी ने बहुत सस्ता ले लिया और उसको महंगा बेच दिया, किसी ने थोड़ा सा महंगा ले लिया था और थोड़ा सस्ता बेचा। सो दिस इज द एवरेज नंबर दैट यू कैन कीप इन माइंड। इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, दे मेक द मोस्ट प्रॉफिट्स। सो 28% तक के रिटर्न्स थे जो लोगों ने बनाए। नाउ if we analyze all of these asset classes, जिनके अंदर आप अपने पैसे पार्क कर सकते हैं, तो हर एसेट क्लास के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। गोल्ड की बात करें तो एक ग्लोबली स्टेबल चीज है जिसके अंदर लोग अपने पैसे पार्क करते हैं, इन्फ्लेशन के अगेंस्ट हेज करती है। हमने देखा कि मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन हमारी 40 सालों से 8% थी, लेकिन गोल्ड 15% दे रहा था, विच मीन्स इट्स गुड अगर हम इसको देखें उस एतबार से। साथ इस सारी चीज की लिक्विडिटी गोल्ड की बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। ये इनकम जनरेटिंग नहीं होता, इसकी प्राइस थोड़ी सी वॉलेटाइल होती है, और इसको स्टोर करने का भी इशू होता है, हमें डर होता है कि ये चोरी ना हो जाए। गोल्ड की बात मैंने इसलिए सबसे पहले की है कि इट हैज अ वेरी सेंटिमेंटल वैल्यू इन आवर सोसाइटी। खवातीन को अक्सर द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू देयर माइंड इज कि वो गोल्ड खरीदें। देयर इज अनदर थिंग जिसके अंदर लोगों का लोग बड़ी मोमेंटम बाइंग करते हैं उसमें, दैट इज डॉलर। पीपल थिंक कि अगर उन्होंने डॉलर में एक चीज कमा ली है, सो दे शुड कीप इट इन डॉलर बिकॉज वो बहुत अच्छा रिटर्न देगी, बट डेटा सजेस्ट अदरवाइज। डॉलर जो है वो आपको 7.8% तक का रिटर्न दे चुका है, जो कि बेयरली हेज कर रहे हो आप इन्फ्लेशन के अगेंस्ट इन द लॉन्गर रन। लिक्विड बहुत ज्यादा है, आप इसको किसी भी टाइम बेच सकते हैं, फॉरेन से बेच सकते हैं, प्रॉब्ली गोल्ड से ज्यादा जल्दी बेच सकते हैं। एंड ग्लोबली इसके अंदर क्योंकि ट्रेड हो रही होती है तो इट्स वेरी स्टेबल एज वेल, बट वही इसके मसले भी हैं, कॉन्स भी हैं जो हमने इसको डिस्कस किया इसमें। बैंकिंग प्रोडक्ट्स, पीपल कंसिडर इट अ सेफ ऑप्शन। सो जहाँ पे लो रिस्क है वहां पे लो रिटर्न भी है। हमने देखा कि सेंस ऑफ सेफ्टी के साथ साथ और लिक्विडिटी के साथ साथ हमें रिटर्न भी थोड़ा ऑन द लोअर साइड मिल रहा है। स्टॉक्स एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हमारी 25 करोड़ की आबादी में से आज तक सिर्फ 2.5 लाख लोग इस पर्टिकुलर मार्केट में एंटर हुए हैं, 2.5 से 3 लाख। बट जो एक्टिव लोग हैं जो ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में पैसे बनाते हैं, देयर आर अराउंड 35,000 पीपल। सो फॉर अ मार्केट दैट हैज बीन ऑपरेटिंग फॉर दिस लॉन्ग टाइम, ये बहुत ही कम लोग हैं जो इसका हिस्सा बन पाए बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, नंबर वन, एंड नंबर टू वॉलेटिलिटी। स्टॉक्स बहुत ही ऊपर नीचे जाते हैं जिसकी वजह से लोग अक्सर इसमें इन्वेस्ट करते हुए डरते भी हैं, बट लिक्विड भी है, काफी लिक्विड है। सो हमने अगर स्टॉक मार्केट को एनालाइज किया तो 11.8% का रिटर्न इसने दिया। इसी तरह रियल एस्टेट की बात करें तो सबसे पहले तो लोग चाहते हैं कि वो एक मेच्योर रियल एस्टेट लें। बाय मेच्योर वी मीन बनी हुई रेंट यील्डिंग प्रॉपर्टीज जिनको आप बिल्कुल नेक्स्ट डे से इस्तेमाल कर सकते हैं, बट रिटर्न वाइज दे आर ऑन द लोअर साइड, क्लोज टू गोल्ड, क्लोज टू बैंक्स, बिकॉज देर अ सेफ वे वेयर यू कैन एक्यूमुलेट वेल्थ। एक चीज जो कि हाई रिस्क तो होती है बट हाई रिटर्न भी होती है, दैट्स डेवलपमेंटल रियल एस्टेट। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है तो दिस इज समथिंग जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर लाजमी होनी चाहिए। माई पर्टिकुलर एडवाइस टू एवरी वन इज कि ये पर्टिकुलर एसेट क्लासेस में किसी भी एक एसेट क्लास के साथ हमें इमोशनली अटैच नहीं हो जाना चाहिए, एंड वी शुड नॉट put all our eggs in that one basket. We should diversify our portfolio. हमारे टोटल पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा लिक्विड चीजों में भी होना चाहिए जिनको हम जरूरत पड़ने पे आसानी से एक्सेस कर सकें, और कुछ पोर्टफोलियो का हिस्सा ऐसी चीज में भी होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म और हाई ग्रोथ वाली चीज हो, जो कि बीट कर दे बाकी सारी एसेट क्लासेस को। 10 ईयर्स के अंदर अगर हम एनालाइज करें कि किसी एक एसेट क्लास में अगर मेरे पास 10 लाख रुपए पड़े हुए थे तो वो 10 सालों में क्या बनते। सो डॉलर में अगर मैं 10 लाख रखता तो ये तकरीबन 21.5 लाख रुपए बन जाते इन 10 ईयर्स, वेरएज बैंक के अंदर ये 26 लाख रुपए बनते। इसी तरह गोल्ड इज समथिंग दैट इज फिनोमिनल। अगर आप इसको देखें 42 लाख रुपीज है जो वो 10 लाख बन जाते इफ केप्ट फॉर 10 ईयर्स। स्टॉक मार्केट को अगर हम देखें तो तकरीबन 31 लाख रुपीज।
इसी तरह हम एक बनी हुई रियल एस्टेट को देखें, विच दैट्स 41 लाख रुपीस, प्रीटी सिमिलर टू गोल्ड एंड बीटिंग ऑल अदर एसेट क्लासेस। एंड अगर हम बात करें डेवलपमेंटल रियल एस्टेट की, अंडर डेवलपमेंट, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, so that's around 1.2 crore rupees, something that's pretty phenomenal in the sense कि ये वो particular opportunity है that we as a tech platform wanted to enable, कि वो एक आम पाकिस्तानी और masses के लिए available हो। There's also a buzzword जो आजकल चल रहा है, it's called the FIRE movement, financially independent, retire early. So हम इसके ऊपर एक last plan बनाते हैं, and we'll end my session over here and then I'll take your questions. So I'll share the screen and मैं आप लोगों को ये कैलकुलेटर दिखाता हूँ जिसके अंदर what I would want कि हमें इस सेशन के अंदर मोहित ने ज्वाइन किया है, who's a fresh starter who started investing with us. उसने हमें recently join किया a couple of months ago, and I would want to ask मोहित के what's the sort of amount जो आप monthly allocate कर सकते हो, and if we place it in developmental real estate जिसकी हमने बात की, तो what will it get you? And let's see कि आपके पास कब इतनी amount हो जाएगी कि आप खुद financially free feel करो and you can retire. Thank you, Basim. Thank you, Basim. मैं since अभी मुझे 2 महीने हुए graduate हुए and it's been 2 months since I've joined Dow PropTech and I'm a CS graduate. मैं almost around 50,000 rupees month का मैं side पे कर सकता हूँ. So obviously I would like you to tell me कि मेरे जैसा बंदा जो real estate खरीदने का सोच भी नहीं सकता, since I belong like Gen Z से हूँ मैं, हम लोग नहीं सोच सकते कि हम लोग एक मतलब प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं. It's a far-fetched dream, right? So I would like you to tell me कि अगर मैं 50,000 rupees per month साइड पे करूँ and I invest through Dow PropTech, तो मुझे क्या benefits मिल सकते हैं? Right. मोहित, मैं I'll go back to my calculator and हम ये जो सारा प्लान है ये सबके सामने इसलिए बनाते हैं so that people understand what's the scope of their investment if they plan it long term, and how even a small amount can make a huge difference with regards to this. So अगर हम initial investment भी 50,000 कर दें और हम monthly investment भी 50,000 कर लें, ये कहना आसान है बट इसको फॉलो करना बड़ा ही मुश्किल बन जाता है, स्पेशली बिकॉज लोग कंसिस्टेंटली चीजों को फॉलो नहीं कर सकते. तो मोहित, दिस इज हाउ योर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली प्लान वुड लुक लाइक अगर आप सिर्फ इतनी अमाउंट एलोकेट कर पाते हो. Although I believe कि जैसे जैसे आप अपने करियर में आगे जाओगे, your incomes level will increase and the amount of saving that you can make that will increase also. But अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस टाइम पे आपके 50,000 की एग्जांपल लें, तो आप तकरीबन मेरे साथ इन 20 years टाइम आपने 12 million rupees इन्वेस्ट किए होंगे, एंड इन टोटल आप 28% अगर हम आपकी सारी अमाउंट को हर साल ग्रो कर पाए, तो दैट कैन बिकम 38 करोड़ 65 लाख रुपीज बाय ईयर 2044. तो आई थिंक ये एक काफी सिग्निफिकेंट अमाउंट है, जिसके बाद अगर आप इसको सिर्फ पैसिव इनकम वाले एसेट्स के अंदर ही पार्क कर दो, तो आप आराम से जो है रिटायर हो सकते हो और आप जो हो अपनी जिंदगी के फर्दर चीजें परस्यू कर सकते हो, लाइक ट्रैवलिंग एंड जस्ट बीइंग विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. थैंक यू. मुझे मतलब वही वाली बात है ना कि वी डिडंट नो, जिस तरह मैं हूँ, आई रियली डिडंट थिंक अबाउट फाइनेंशियल्स और मेकिंग एसेट्स, क्योंकि ये ब्लैक ग्रे एरिया था स्पेशली मेरी जनरेशन के लिए. वी जस्ट टेंड टू फाइंड डिफरेंट एवेन्यूज, जिस तरह क्रिप्टो हो गया या इस तरह की चीजें. बट knowing कि Dow PropTech is providing me the platform, कि जिस तरह भी आपने मुझे दिखाया कि अगर मैं सिर्फ 50,000 भी पर मंथ 20 years के लिए अगर मैं साइड पे करूँ, तो I can make a significant amount. So thank you so much for that. थैंक यू मोहित. आई वुड वांट साथ के जो लोगों के क्वेश्चंस हैं, लेट्स टेक दोज. आप अगर
जो स्लाइडो का लिंक आपने अटैच किया हुआ है उसको प्रेजेंट कर देते हो एंड यू कैन आस्क वन बाय वन कि क्या क्वेश्चंस है. लेट्स गो थ्रू देम क्विकली. एनीवन हु इज रेजिंग अ हैंड, काइंडली आप अपने स्लाइडो के ऊपर क्वेश्चंस पोस्ट करें और अगर कुछ नहीं एड्रेस होगा तो हम उसको यहाँ पे भी देख लेंगे. सही है. तो आप लोग क्वेश्चंस को लाइक भी कर सकते हैं एंड जो क्वेश्चन लाइक हो रहा होगा वो सबसे ज्यादा ऊपर आ जाएगा तो विल नो कि सारे लोग क्या पूछना चाह रहे हैं. सो व्हाट इज डाउ प्रॉप्टेक आपने पूछा. सो डाउ प्रॉप्टेक एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर हम रियल एस्टेट को टोकनाइज करते हैं. जिस तरह हमने समझा कि टोकनाइजेशन है क्या. सो जितने भी एसेट्स दैट आर अंडर डेवलपमेंट एंड सम एसेट्स जो कि बन चुके हैं उन सबको हम टोकनाइज करते हैं एंड वी मेक इट एक्सेसिबल फॉर द मैसेस. इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर द होल इकोसिस्टम. जो बंदा भी रियल एस्टेट को इस्तेमाल करता है इन एनी सॉर्ट ऑफ कैपेसिटी, ये प्लेटफॉर्म उसके लिए. अगर एक डेवलपर है जो अपनी बिल्डिंग बेचना चाह रहा है, ही कैन लिस्ट हिज प्रोजेक्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म. अगर एक यूजर है जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, ही कैन विजिट आवर प्लेटफॉर्म एंड ही कैन गेट ऑल द डिटेल्स जो उसके लिए पहले कन्वेंशनल तरीके से अवेलेबल नहीं थी थ्रू दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म and invest while making an informed decision. Third thing is कि अगर आप you work in real estate and you basically guide people on investments तो आप भी इस platform को use कर सकते हैं. So it's a one-stop solution for everyone. On the platform, we have certified, verified projects. We choose only the best projects that are in our town. And through the technology, we make it accessible for everyone. And then there's a whole play for every particular player in this industry. So another question is that benefits DAO PropTech के क्या हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं briefly, but मैं दो तीन चीजें highlight करना चाहूँगा that how it is a win-win situation for everyone. So technology की मदद से we were able to gather around in the last 4 years 40,000 plus users on our platform. जब हमारे पास इतने ज्यादा यूजर्स आ गए, इनिशियली वी वर मेकिंग आवर ओन डेवलपमेंट्स, बट देन वी स्टार्टेड बिल्डिंग द सप्लाई साइड जहां पे हम दूसरे प्रोजेक्ट्स भी लेके आना शुरू हुए. पीपल लाइक आरिफ हबीब, सिल्वर ओक्स, 101 ग्रुप, सम प्रोजेक्ट्स इन नथिया गली, ये सब भी हम लाना शुरू कर दिया. एंड नाउ हाउ इज इट अ विन-विन फॉर एवरीवन. फॉर एन इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं देखूं तो उसको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स नजर आते हैं प्रॉपर्टी के. इन्वेस्ट करने के बाद उसको प्रॉपर्टी की सारी कंस्ट्रक्शन की अपडेट्स नजर आती हैं, उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है कि कब कितनी चीज बिक रही है और उसके अगेंस्ट कितना काम हो रहा है. दिस सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वाज नॉट अवेलेबल बिफोर. And then since it's a public platform जिसके ऊपर इतने लोग आ चुके हैं, we were able to negotiate the best deals from these developers. इसकी एग्जांपल मैं अक्सर देता होता हूँ कि booking.com के ऊपर या bookme के ऊपर आपको अक्सर जो होटल चेन्स हैं उनके रूम्स जिस प्राइस में लगे होते हैं उससे भी सस्ते मिल रहे होते हैं. क्यों? क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ऑडियंस इतनी होती है कि ये वो नेगोशिएट कर पाते हैं. सो दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग फॉर आवर इन्वेस्टर्स. अगर हम डेवलपर की बात करें तो अगर उसकी एक बिल्डिंग थी सिल्वर ओक्स एंड इट वाज ओनली एक्सेसिबल टू द क्रीम ऑफ इस्लामाबाद, जो लोग जिनके पास 3 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ है, नाउ इट्स एक्सेसिबल फॉर मोहिद एज वेल जो कि 50,000 से उसके अंदर इन्वेस्ट करने का सोच सकता है एंड ही कैन मेक द सेम प्रॉफिट्स जो कि 3 करोड़ या 5 करोड़ वाला बनाएगा. सो दिस इज समथिंग जिसके थ्रू हम लोगों ने एक पूरा ऐसा इकोसिस्टम बनाया दैट बिकम्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीवन. डिसेंट्रलाइज्ड रियल एस्टेट फाइनेंसिंग इसी पर्टिकुलर चीज को कहते हैं कि कोई बंदा रिगार्डलेस ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट अमाउंट इस पूरी चीज का हिस्सा बन सके और द प्रोसेस थ्रू विच ही मेक्स प्रॉफिट इज द सेम थ्रू विच बाकी सारे बना रहे हैं. सो आप 50,000 लगा रहे हो या 3 करोड़ लगा रहे हो, once the square feet price is growing, it's growing in the same manner for everyone. So इसी को decentralized finance कहते हैं कि कोई बंदा किसी भी अमाउंट से इस पर्टिकुलर चीज का पार्ट बन सके and the profit sharing mechanism is homogeneous and same. A question about why very few people know about DAO PropTech and advertisement बहुत कम क्यों की हमने. So इसके ऊपर I'd say कि 2 particular approaches थी. हम लोगों ने इनिशियली बहुत ज्यादा मार्केटिंग स्पेंड इसलिए भी नहीं किया
कि वी बिलीव कि इट टेक्स द ट्रू वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट अवे फ्रॉम इट जब उसके ऊपर बहुत ज्यादा मार्केटिंग कॉस्ट्स इंस्टॉल कर दी जाएं. Whereas we were more focused on, you know, giving a product at its true value to our customers. एंड हम चाहते थे कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो हमारी वॉइसेस बने. सो इन द लास्ट 4 years आई थिंक अगर हम लोगों ने 46,000 यूजर्स अपने प्लेटफॉर्म पे कर लिए हैं, वी हैव more than 1,000 customers on this particular platform, and we compared this particular platform to, you know, one of the most mature markets जो decades से चल रही है स्टॉक मार्केट, और उसके अंदर भी 35 से 40 हजार बंदा ही अभी तक आ सका है. So I think we've not done that bad of a job, but obviously there's room for improvement. And as word of mouth spreads, as more and more people join in, we'll focus more on advertising this as well and bringing the best stuff for you guys. Acha ji, will we always get 28% annual return as assumed in FIRE calculator? What are the chances it can go up and go down? So ये तो मैंने प्रूडेंट सा नंबर लिया जो डेवलपमेंट के अंदर अचीव करना इतना मुश्किल नहीं है. सो थ्रू आवर प्लेटफॉर्म अगर मैं अपने इनिशियल इन्वेस्टर्स की बात करूं, आई हैव मैनेज्ड अ पोर्टफोलियो ऑफ 500 million अबव. तकरीबन 150 से ज्यादा क्लाइंट्स को पर्सनली मैंने देखा है. ऑन एवरेज जो मैंने पिछले 3-4 सालों में गेन्स अपने मैनेज्ड पोर्टफोलियो के देखे हैं, दे वर अराउंड 30%. हायर साइड पे दीज नंबर्स वर 40% and above as well, 45%, and lower side के ऊपर 25% तक भी गया है, 20% तक भी गया है. So it really depends कि project to project भी depend करता है, and इसीलिए हम कहते हैं कि हमें diversify करना चाहिए among different projects ताकि हम ये एक average growth achieve कर पाएं. So there's another question: can I lose capital if I invest in Dow PropTech? What are the chances like people lost money in recent scams in real estate? So the whole point of creating this technology, this platform was कि आप एक informed investment decision ले सकें. When you don't know कि आप जिस entity को pay कर रहे हो वो asset hold करती भी है या नहीं, and then someone runs away and you're left with a piece of paper जिसकी कोई worth नहीं है, that's where, you know, scams happen, that's where you lose wealth. Our focus was कि हम day one पे इतनी transparency लोगों को दे दें कि उनका नुकसान बिल्कुल भी ना हो सके, उनकी डाउन साइड हमेशा प्रोटेक्टेड रहे. तो व्हेनेवर यू चूज अ प्रोजेक्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, आपको पता होता है कि वो एक एक्स कंपनी के नाम है, आप डायरेक्टली उस एक्स कंपनी को पैसे देते हो. सो लेट्स सपोज एलिमेंट्स रेजिडेंशिया अगर एक प्रोजेक्ट है, सो आप डायरेक्ट एलिमेंट्स रेजिडेंशिया के अकाउंट में पैसे डालेंगे. यूल नो कि उसकी लैंड एलिमेंट्स रेजिडेंशिया के नाम पे, you'll get a contract from Elements Residencia. So your investment will be protected in that sense. And real estate as an asset class, it never goes down. आपका प्रिंसिपल कभी भी रियल एस्टेट में नहीं नुकसान में जाएगा अगर आपने सही रेट और सही वैल्यू पे चीज खरीदी है. And showing our due diligence, our working, how we keep every factor, everything in mind, inflation, आपका GDP, आपकी मनी सप्लाई, आपकी रियल एस्टेट की प्राइसेस, आपकी हर कमोडिटी की प्राइस, हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, they're certified, they're verified, and उनकी जो प्राइस है वो बेस्ट प्राइस हो in the competitive market. So our customers, I take that as a win कि even last year में जब एक पूरा डाउनवर्ड ट्रेंड रहा है, पूरी की पूरी रियल एस्टेट मार्केट क्रैश की है, our customers were still exited during the last 1 year. उन सब ने ऑन एवरेज 25 से 30% के बीच का गेन बनाया. So that's a huge win for me, for my team. अच्छा जी, initial amount 20 lakh and add 2 lakh each month. What would it look like in 10 years? So इसको कर लेते हैं. I think I'll share my screen. साद आप फिर इसके बाद बेशक दोबारा से शेयर कर देना अपनी स्क्रीन. Let's just see कि ये numbers क्या होंगे. I am excited to have a look at these numbers as well. So तकरीबन आपने 5 करोड़ इन्वेस्ट किए होंगे इन 20 years, और अगर 28% हम इसको हर साल बढ़ा पाएं, तो this is what it looks like. This is huge. I mean, इसके बाद तो आप शायद अपना एक शहर बनाना शुरू कर सकते हैं. So कंसिस्टेंसी से सारी चीज को अचीव करना मुश्किल होता है, बट
I am on this journey for myself as well, and I would highly encourage you all to, start planning consistent amounts and see the magic in the longer run. Okay, so एक क्वेश्चन है जो टैक्स के ऊपर है और रियल एस्टेट के ऊपर है, एंड मैं आपको इसके ऊपर बताता हूँ. सो आज ही मैं टैक्स के कुछ नंबर्स भी देख रहा था, एंड आई वाज लुकिंग एट द टोटल टैक्स का नंबर दैट पाकिस्तान कलेक्ट्स, और उसमें से रियल एस्टेट से कितना आता है. और फिर मैंने गवर्नमेंट की पॉलिसीज को भी कुछ एनालाइज किया, जो कि मुझे लगा कि काफी फेवरेबल है इन वन डायरेक्शन. सो आपके जो टोटल टैक्स का रेवेन्यू है उसका 0.5% आपके रियल एस्टेट टैक्सेस से आता है. सही है. सो गवर्नमेंट ऑब्वियसली वांट्स टू इंक्रीज दिस नंबर, बट इसको डबल भी कर लिया जाए, ट्रिपल भी कर लिया जाए, तो भी ये इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं डालेगा. आपका सबसे ज्यादा जो टैक्स का रेवेन्यू कलेक्ट होता है वो आपके जीएसटी से होता है, जो आप प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, खाने की, पीने की, शॉपिंग प्रोडक्ट्स, अदर प्रोडक्ट्स. 51%, मेरे ख्याल है 50 तो नहीं, अराउंड 40% तक का नंबर था जो उधर टैक्स रेवेन्यू में वहां से आता है. सो रियल एस्टेट के ऊपर टैक्सेशन कोई बहुत ज्यादा हैवी टैक्सेशन नहीं हुई, आई बिलीव, इन द पास्ट. बिल्कुल ही नॉन रेगुलेटेड सा रहा है. सो इस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर भी अगर हम देखें तो 3% का रियल एस्टेट के ऊपर टैक्स है, वेयर आपका जीएसटी हर खाने पीने की चीज, कपड़े के ऊपर 15% का लग रहा है, विच इज ह्यूज. सो इस पर्टिकुलर चीज को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ये जरूर इस तरह की पॉलिसीज बना रही है कि लोग अनप्रोडक्टिव एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट ना करें, और इस तरह से जो प्लॉट्स और लैंड टाइप चीज लेके वो होल्ड कर लेते हैं, और देन दे डोंट बिल्ड और डेवलप एनीथिंग ऑन टू इट. सो उसको डिस्करेज जरूर करें, बट डेवलपमेंट को दे ऑलवेज एनकरेज, बिकॉज वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को इनकरेज करती है. जब एक बिल्डिंग बनती है तो सरिये वाले का काम भी चलता है, आर्किटेक्ट का काम भी चलता है, पेंट वाले का काम भी चलता है, कमर्शियल यूनिट्स भी बनते हैं, रेजिडेंशियल यूनिट्स भी बनते हैं, ऑफिसेज भी बनते हैं, उन सब के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है, एंड द ओवरऑल इकोनॉमी इज गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन. सो दैट इज ऑलवेज एनकरेज. Whereas जब एक खाली पीस ऑफ लैंड को होल्ड कर दिया जाए, दैट्स डिस्करेज्ड, बिकॉज वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता. एंड गवर्नमेंट इज मेकिंग पॉलिसीज कि वो जब खाली पीस ऑफ लैंड महंगा ट्रेड हो तो उसके प्रॉफिट में से सर्टेन परसेंटेज दे टेकिंग एज अ टैक्स. अच्छा जी. So the unit share value will be subscribed through SECP. So no, SECP का रोल अंडरस्टैंड करना चाहिए हमें. So SECP को फुल फॉर्म भी अगर हम देखें तो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान. इसके दो एक्ट्स हैं जिसके ऊपर ये एक्ट कर रही होती है एंड कंपनीज को देख रही होती है. एक कंपनीज एक्ट है और एक सिक्योरिटीज एक्ट है. कंपनीज एक्ट ये कहता है कि आपने जो अपनी कंपनी रजिस्टर की है वो पाकिस्तान के जितने भी कंपनी रजिस्टर करने के बायलॉज हैं क्या उसको फॉलो करता है या नहीं करता. सेकंड जो सिक्योरिटीज है, यानी कोई भी बंदा अपनी कंपनी को लिस्ट करे और उसके शेयर्स बेचना शुरू कर दे, यानी मैं कहूँ कि डाउ प्रॉपटेक का बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है और आप मेरे बिजनेस में कुछ पैसे डालें और मेरे बिजनेस के प्रॉफिट्स लें, तो देन SECP से मुझे इसके लिए एक लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी. वेयरएज यहाँ पे ये दोनों सिचुएशंस नहीं हो रही. डाउ प्रॉपटेक एक एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म है, एक टेक प्लेटफॉर्म है. इसकी मिसाल ऐसे होगी, पार्क व्हील्स है, वो गाड़ियों की प्राइसेस जो कंज्यूमर लगाते हैं, जो लोग लगाते हैं, उनको लिस्ट कर देता है, एंड देन देयर इज अ साइड जहां पे लोग गाड़ी बेचना चाह रहे हैं, देयर इज अ साइड जहां पे लोग लेना चाह रहे हैं. इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे SECP कहीं भी गाड़ी की प्राइस नहीं मेंशन कर रहा या SECP उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहा. SECP सिर्फ ये मेक श्योर कर रहा है कि पार्क व्हील्स मेरे पास रजिस्टर्ड ठीक करें, और हाँ, पार्क व्हील्स डायरेक्टली लोगों से पैसे ना ले. ठीक है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर एक्सचेंज हो, पार्क व्हील्स डायरेक्टली लोगों से पैसे ना ले ऑन बिहाफ ऑफ समवन एल्स. सो डाओ भी इसी तरह है कि एक हमारे पास डेवलपर की साइड है जहां पे बिल्डिंग है, उस डेवलपर ने अपनी प्राइस सेट की हुई है, सिल्वर ओक्स ने अपनी प्राइस खुद रखी हुई है. अगर सेंटोरस इस प्लेटफॉर्म पे आएगा तो वो अपनी प्राइस खुद सेट करेगा. इट इज फॉर द कंज्यूमर टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम देम. हमारा प्लेटफॉर्म सिर्फ उन्हें फैसिलिटेट करेगा कि आप डिजिटली एक प्लेटफॉर्म के जरिए इस सारी चीज को खरीद सकें, सारी डॉक्यूमेंटेशन आपके घर पे डोर स्टेप पे पहुंच जाए, और आप इसको मॉनिटर करना चाहें या बेचना चाहें तो आप ऑनलाइन घर बैठे आराम से कर सकें, जिस तरह आप अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज बाकी सारे प्रोडक्ट्स में भी ये चीज कर सकते हैं. अच्छा जी. On your website, not many projects are listed.
How can a finished project on your platform give us returns? So we've been very picky in terms of who we work with in the past 4 years. सबसे पहले हमने इस पर्टिकुलर साइकिल से अपने आप को टेस्ट किया, अपने प्रोजेक्ट्स बनाए, फुल डिलीवर किए, उनको एक मेच्योर स्टेज तक लेकर आए, एंड देन वी स्टार्टेड टेकिंग पब्लिक प्रोजेक्ट्स. अब आरिफ हबीब का नाम भी ऑन द प्लेटफॉर्म है, सिल्वर ओक्स का नाम भी ऑन द प्लेटफॉर्म है, एंड देयर इज अ वेटिंग लिस्ट ऑफ अराउंड 50 अदर प्रोजेक्ट्स एज वेल, जिसको हमारी टीम अभी उस पर ड्यू डिलिजेंस करी है, एंड वी वांट टू मेक श्योर कि हम बेस्ट प्रोजेक्ट्स लेके आए सारे लोगों के लिए. जो इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, दैट्स इंटरेस्टिंग, एंड मैं उसको एड्रेस करना चाहूंगा बिकॉज मेनी पीपल आस्क दिस कि वो रिटर्न कैसे बना सकते हैं एक बनी हुई बिल्डिंग पे जिसमें वो इन्वेस्ट करें. सो वंस यू इन्वेस्ट इनटू अ बिल्ट अप एसेट, तो उसके रिटर्न के दो एस्पेक्ट्स हैं. वो एसेट अगर किराए पे लगा हुआ है तो वो आपको रेंट देगा, दैट्स वन एस्पेक्ट ऑफ इट. एंड सेकेंड ये है कि उसकी वैल्यू भी बढ़ती है. सो एग्जाम्पल ये है कि अगर एक 50,000 रेंट देने वाली चीज 1 करोड़ की है, सो 60,000 रेंट देने वाली 1 करोड़ 20 की होगी, 70,000 रेंट देने वाली 1 करोड़ 40 की होगी. सो जैसे जैसे हर साल इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का रेंट बढ़ता है, इसकी लैंड भी अप्रिशिएट करती है, एंड इट्स ओवरऑल वैल्यूएशन इंक्रीजेज ईयर ऑन ईयर. सो आपने अगर एक बनी हुई बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया तो एक एस्पेक्ट उसका वो होगा कि आपको रेंट मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ स्क्वायर फीट्स यू होल्ड, एंड उसकी पर स्क्वायर फीट प्राइस भी बढ़ी होगी ईयर ऑन ईयर. You're an inspiration for young people wanting to invest and become financially literate, especially real estate. Thank you, whoever it was, anonymous hai. So it really makes me happy looking at people when they comment about it in such a way. I still do not understand how investment is secure. When I buy a token, how is it legally my property? What if one dies or what happens? So इसको मैं explain करता हूँ. So whenever you buy a real estate, आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है जो आपका स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिफाइन करता है. यानी अगर मैंने अपार्टमेंट बाय किया है, तो मैं उसके उसी डॉक्यूमेंट के अंदर नेक्स्ट ऑफ किन की डिटेल्स में कुछ जिसके भी नाम मैं ट्रांसफर करना चाहता हूँ मैं वो ऐड कर दूंगा, और वो डॉक्यूमेंट मेरी स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिफाइन करे कि या मैं इस पर्टिकुलर अपार्टमेंट को फ्यूचर में बेच सकता हूँ या मैं इसमें रह सकता हूँ, और अगर कोई इंस्टॉलमेंट का प्लान है तो वो अटैच हो जाता है. इसी तरह व्हेनेवर यू मेक इन्वेस्टमेंट विद अस, तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या आप पूरा का पूरा अपार्टमेंट या पूरी की पूरी शॉप लेंगे, या इफ यू वांट टू स्टार्ट स्मॉल लाइक मोहित इज डूइंग फॉर द पास्ट 2 months, तो आप कुछ स्क्वायर फीट से स्टार्ट करेंगे. 50,000 में लेट्स सपोज आपके पास 5 स्क्वायर फीट आएंगे, तो आपको भी सेम एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, बट आपका स्कोप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिफरेंट है. वो डॉक्यूमेंट लीगली आपकी ओनरशिप भी डिक्लेयर करेगा और उसके साथ साथ आपके राइट्स भी बताएगा. सो नंबर 1 ये है कि यू हैव द राइट टू सेल योर स्क्वायर फीट्स, जिस तरह एक बंदा पूरा अपार्टमेंट बेच सकता है, एंड वी विल फैसिलिटेट दैट. हमारे प्लेटफॉर्म पे मार्केट प्लेस भी है, उसके ऊपर हम आपके स्क्वायर फीट्स बेच भी सकते हैं. 46,000 लोग भी हैं, and there are multiple ways to liquidate. इसी सारी चीज के साथ नंबर 2 ये कि आपको अपने स्क्वायर फीट्स का प्रोपोर्शनेट रेंट मिलेगा. दिस इज द सेकंड एस्पेक्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. एंड द थर्ड इज कि अगर आपके स्क्वायर फीट इकट्ठे होते होते एक अपार्टमेंट के बराबर हो गए तो यू कैन ऑलवेज कन्वर्ट. सो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं, दैट विल बी डिफाइंड इन दैट डॉक्यूमेंट, एंड नेक्स्ट ऑफ किन का डॉक्यूमेंट भी इसके साथ आपका अटैच हो जाता है. ऑल ऑफ दिस इज ऑल्सो डन ऑनलाइन एज वेल. हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप ये सारी डिटेल्स एंटर करके ये सब काम कर सकते हैं. अच्छा जी, if we got 300 square feet in a project, then we'll differentiate these square feet are in commercial or residential area, or shops or apartment. So हम लोगों का जिस तरह मैंने कहा आप convert कर सकते हैं, और अभी मैं इसी चीज को explain कर रहा था. So while converting, आपका conversion का factor लगा होता है. जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये चीज प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करती है. हर प्रोजेक्ट में कमर्शियल की प्राइस डिफरेंट हो सकती है, रेजिडेंशियल की प्राइस डिफरेंट होती है. सो मोटा मोटा मैं आपको एक पर्टिकुलर अपने स्टार्टिंग प्रोजेक्ट से एक्सप्लेन कर देता हूँ. सो एलिमेंट्स इज वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स जिसके अंदर हमारे पास कमर्शियल एरिया भी और रेजिडेंशियल एरिया भी है. सो इसके अंदर कन्वर्जन फैक्टर ये है कि कमर्शियल के 1 फुट के लिए आपको अपने रेजिडेंशियल के 3 फुट देने पड़ेंगे, और रेजिडेंशियल का 1 फुट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 स्क्वायर फीट दैट यू बाय. सही है. सो आपने 1 स्क्वायर फीट बाय किया और करते करते आपके 300 हो गए.
अब अगर आपने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट लेना है 300 स्क्वायर फीट का, तो 1:1 पे, यानी 300 फुट का आपको अपार्टमेंट उसी के हिसाब से मिल सकता है। बट इफ यू वांट कि ये 300 फुट कमर्शियल में आ जाए, तो ये इस रेशियो के हिसाब से 100 फुट बन के कमर्शियल में एलोकेट हो जाएंगे इनटू अ शॉप और एनीथिंग जो कि उधर अवेलेबल होगी। अच्छा जी, हाउ क्विकली कैन वी विदड्रॉ फंड्स आफ्टर 1 to 2 years इफ वी नीड इन एन इमरजेंसी? सो हम लोगों ने इसका प्रोसेस बड़ा सिंपल रखा हुआ है। इसको हमने रखा भी ईयरली बेसिस पे। सो वी डोंट वांट रियल एस्टेट टू बिकम अ गैम्बलिंग टूल जहां पे लोग 1 मिनट पैसे डालें, अगले मिनट निकालें। एंड इन द पास्ट इसकी जितनी भी एग्जांपल्स हैं, जिस तरह लोगों ने जब रियल एस्टेट को इस तरह ट्रीट किया, तो देव मेड अ लॉस एंड इट हैजंट बीन प्रोडक्टिव एट ऑल। सो हम लोगों ने अपना मैकेनिज्म इस तरह रखा हुआ है कि आफ्टर एवरी 1 year 12 मंथ्स का लॉक इन होता है। आप अपने स्क्वायर फीट्स को, चाहे वो एक शॉप जितने या एक चंद स्क्वायर फीट्स हैं, उसका कोई भी एक्स नंबर है, बेच सकते हैं। 60 to 90 days का टाइम होता है, विच इज अ विंडो फॉर लिक्विडेशन, और उसके अंदर आप अपने स्क्वायर फीट्स को लिक्विडेट कर सकते हैं थ्रू अस। मार्केट प्लेस भी आपके पास एक ऑप्शन है, आपके पास एक ट्रांसफर करने की भी ऑफलाइन ऑप्शन है कि आपने खुद ही किसी को बेच दिया, एंड देन यू हैव एन ऑप्शन for us to facilitate you as well, as we have a company managed fund and we have new customers coming in as well जिनके थ्रू हम ये चीज मैनेज कर सकते हैं। So I hope सबके सब क्वेश्चंस एड्रेस हो गए। अगर किसी का कोई भी और क्वेश्चन है तो आई वुड लव टू आंसर दोस। अगर आप में से कोई अपना माइक अनम्यूट करके हमसे कोई क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं तो आप प्लीज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। So अगर आप लोग अपना हाथ रेज कर लें और हम लोग वन बाय वन वील कम टू यू गाइस, एंड देन आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो जी सिद्रा, यू रेज्ड योर हैंड, मैंने सबसे पहले ही देखा जी। मेरा क्वेश्चन ये था, पहले तो जी काफी अच्छी प्रेजेंटेशन थी, काफी सारे मैं काफी फॉलो कर रही हूँ, लेकिन थोड़े समझ नहीं आता था, बट काफी आपने अच्छा एक्सप्लेन किया अपने सारे जितने भी पोर्टफोलियोज और अपनी वर्किंग है। अच्छा जी, सवाल मेरा ये है कि जैसे आपके एक पार्टिसिपेंट है मोहित, जो कि काफी छोटे पैमाने पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसी तरह की इन्वेस्टमेंट मेरे ख्याल में ये कैपिटल गेन के लिए तो हो सकती है। लेट्स से अगर कोई बंदा शुरू में ही रेंटल हासिल करना चाहता है, कोई पैसिव इनकम लेना चाहता है, तो उसके लिए उसको कुछ खास मिनिमम अमाउंट होगा जो वो इन्वेस्ट करे तब उसको मिलेगी, या किसी टाइम पीरियड के बाद इन्वेस्ट करने के बाद उसको रेंटल्स मिलना शुरू होंगे? So, Sidra, thank you for appreciating our efforts. अगर आपने रेंटल रिसीव करना है तो उसके लिए आपके पास कोई एक स्पेसिफिक अमाउंट का बैरियर नहीं है। दिस इज द होल पॉइंट ऑफ दिस थिंग कि आप अगर 1 फुट की भी ओनर हैं और एक प्रॉपर्टी में वो 1 फुट 100 रुपए जनरेट करे तो वो आपको मिलेगा, ठीक है। whereas there are certain projects on our platform जिसके अंदर डेवलपर ने उस पर्टिकुलर चीज पे लिमिटेशन लगाई हुई है कि यार आई डोंट वांट कि मेरी चीज कोई 20 फुट या 25 फुट से नीचे खरीदे। बट अभी तक हमारे प्लेटफॉर्म पे जो है वो एक डेवलपमेंटल प्रॉपर्टी के अंदर ही है। बनी हुई तमाम प्रॉपर्टीज के अंदर आप 1 फुट से भी शुरू कर सकती हैं, एंड अंडर कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टी के अंदर भी, एंड उसके अंदर in terms of amount कोई भी बैरियर नहीं है। You can start getting your return from the very next month. That's cool. Thank you so much. Thank you जी। जी आदिल कुरैशी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन वालेकुम आपसे ये है कि जो भी इस तरह की इन्वेस्टमेंट होगी, ऑब्वियसली वो अपार्टमेंट बिल्डिंग टाइप की होगी ना, या जो कि घर में तो हो नहीं सकती, ठीक है जी। अच्छा, पहला तो पार्ट ये हो गया। सेकंड पार्ट ये है कि जब आप बिल्डिंग बना रहे हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग बन रही है, तो हमारे पास अपार्टमेंट है एंड प्लस लॉबीज और ये वो चीजें हैं। जब हम ऑब्वियसली पार्शियल इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो हमारा एरिया होगा ना जो नॉन प्रोडक्टिव होना है, जिसको हम कहते हैं हो गए। तो अगर बिल्डिंग ही कंप्लीट होगी और मेरी उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो अपार्टमेंट पूरा नहीं आ सका, तो फिर क्या होगा? सही है, गुड क्वेश्चन। सबसे पहले आपने बात की टाइप के ऊपर, कि किस टाइप की प्रॉपर्टीज के ऊपर हम ये काम कर रहे हैं, तो मैं आपको सबसे पहले उधर से स्टार्ट करता हूँ, देन मैं आपका जो स्पेसिफिक केस आपने बोला मैं उस पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो
हम लोग जो है यूजुअली ये सारा प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं अपनी जो अंडर कंस्ट्रक्शन अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं और हमारी कमर्शियल बिल्डिंग्स जो हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स हम लोग बना रहे हैं, कमर्शियल बना रहे हैं, उसके अंदर भी हम ये सारी चीज फॉलो कर रहे हैं। हमने होटल्स के ऊपर भी ये चीज अप्लाई की है। नथिया गली में वी हैव अ कंटेनर बेस्ड रिजॉर्ट, एक्चुअली पाकिस्तान फर्स्ट कंटेनर बेस्ड रिजॉर्ट जो हमने बनाया था 2021 के अंदर, और वो भी अभी लाइव है। सो ये इस तरह की प्रॉपर्टीज हैं जिन्हें हमने टोकनाइज की है। इसके अंदर अगर आप मुझे ये एग्जांपल देते हैं ना कि सबसे पहले मैं ऐसा एरिया बेच दूं जो कि बिल्कुल ही नॉन प्रोडक्टिव है। सो देर आर टाइप्स ऑफ एरियाज वाइल मेकिंग द बिल्डिंग, देयर इज अ सेलेबल एरिया एंड देन देयर इज अ नॉन सेलेबल एरिया। सो हम सेलेबल एरिया ही बेचते हैं, नंबर वन। सेलेबल एरिया के अंदर हाउएवर एक कमर्शियल हॉल जरूर आ सकता है, बट उस हॉल के अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी प्लान होगी, कोई ना कोई उसका यूज केस होगा कि इसको इस्तेमाल कौन करेगा। जिस तरह हमारी बिल्डिंग जब कंप्लीट होने को जा रही होती है, सो हम उस पर्टिकुलर केस के अंदर उसको इस्तेमाल करने वाला बंदा उसका पहले ढूंढ लेते हैं। सो जिस तरह मेरी कमर्शियल बिल्डिंग्स के अंदर मेरे पास दफ्तर खान है जिसने मेरे से पूरी की पूरी बिल्डिंग ली हुई है रेंट के ऊपर। सो मेरी बिल्डिंग के अगर 21,000 स्क्वायर फीट है, जिसके अंदर हॉल भी है, जिसके अंदर मेरे पास मीटिंग रूम्स भी हैं, जिसके अंदर मेरे पास सिंगल ऑफिस रूम्स भी हैं, वो सब का सब मुझे उस सारी चीज का 135 रुपए पर फुट किराया देता है। सो इट्स अ होमोजीनियस प्रोडक्ट इन दैट पर्टिकुलर सेंस। इट विल नॉट मैटर कि आपके फुट किस जगह पे हैं। हाउएवर अगर आप उसको एलोकेट करना चाहेंगे स्पेसिफिक यूनिट्स में, तो आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल होगी। नाउ आई लॉजिकली एक्सप्लेन हाउ। अगर मेरी एक बिल्डिंग है और उसके अंदर मेरे पास 1,000 स्क्वायर फीट है और मैं 1,000 के 1,000 ही बेच रहा हूँ और मैं उसका सारा रिकॉर्ड आपको पब्लिकली ट्रांसपेरेंटली दिखा रहा हूँ, सो जब किसी बंदे ने भी 100, 200, 300 फुट ओन किए में, तो बैकएंड के ऊपर एक यूनिट अनबुक्ड या अनरिजर्व्ड ही होगा। शायद और लोगों ने भी इस तरह 100, 200, 300 लिए, एंड देन यू कैन बाय मोर एंड कंप्लीट अ यूनिट एट बैकएंड, बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी अ यूनिट अवेलेबल टू ओन। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। सही है। If it does, तो सही है। We can move on to the next person. I think Bangish साहब, आप please go on and ask your question. जी सलामकुम। मैंने वालेकुम सलाम। डाउ प्रॉपटेक एक्चुअली मैंने आई थिंक आई साइंड अप इन 2021 और लेकिन द होल थिंग वाज कि इट डिडंट रियली इंस्पायर कॉन्फिडेंस इन द सेंस कि ये किस तरह से सिक्योर होती है और कैसे ये मैनेज होती है, बिकॉज जैसे आपने पहले जिक्र किया देयर बीन स्कैम्स एंड स्टफ, यू डोंट जी रियली नो कि मतलब ये किस तरह से मैं इसको ऑन करूंगा। वो तो चलें, कुछ हद तक आपने बता दिया है। इट वाज वेरी नाइस प्रेजेंटेशन। मेरा अब सवाल ये है कि सम ऑफ द पार्टिसिपेंट हमारे से वो अपने एट व्हाटएवर पॉइंट जो उनका है करियर में और एज में, तो वो उस हिसाब से देखें। बट इफ यू आर फर्दर डाउन द लाइन एंड you're looking at putting in something for return, तो let's say मतलब अगर सिनेरियो हम देख लें कि 50 lakhs we put in right now immediately, and then let's say 50,000 a month for let's say next, ज़्यादा लंबा नहीं लेकिन 3 से 4 साल, तो what kind of return are we looking at? सही है। Bangish साहब, मैं सबसे पहले I'll talk a little about the first part that you mentioned. Obviously जब एक कंपनी नया आके काम शुरू करना स्टार्ट करती है ना, तो there's a lot to prove। ठीक है, कि ये चीज लॉजिकली ठीक भी है, नहीं है, ये चल भी सकती है, नहीं चल सकती, एंड हाउ डू आई एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम इट। थिंक अबाउट इट कि रियल एस्टेट के 2-3 इनहेरेंट मसले थे ना, जिनको मैं यहाँ पे टच अपॉन करना चाहूंगा। एक्सेसिबिलिटी तो था ही था, लिक्विडिटी एक बहुत बड़ा मसला था, ट्रांसपेरेंसी एक बहुत बड़ा मसला था। लाइक इफ यू हैव टू इन्वेस्ट इनटू एन अपार्टमेंट बिल्डिंग और आपको नहीं पता कि उसके टोटल फुट कितने फुट बिके, उनके अगेंस्ट जो पैसे आए हैं उसका काम कितना हुआ है, उसके लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, तो ये वही प्रॉब्लम्स थे जिनकी वजह से लोग एक इन्फॉर्म डिसीजन नहीं लेते थे एंड दे एंडेड अप बीइंग स्कैम्ड और कोई फ्रॉड या कोई इस तरह की चीज। देन सही रेट और सही वैल्यू पे चीज को लेना। सो इफ यू कंपेयर आवर प्रोजेक्ट्स जो जिस पर्टिकुलर विसिनिटी में भी होंगे विद अदर प्रोजेक्ट्स, यू विल फाइंड देम टू बी ऑन द लोअर साइड। एंड रियल एस्टेट के अंदर इट्स अ प्रीटी सिंपल फॉर्मूला कि यू बाय लो एंड यू सेल हाई। सो वो सेल हाई
मार्केट का तो एक ही होगा, लेकिन अगर आप मार्केट से सस्ते रेट पे चीज खरीद रहे होंगे तो यू विल बीट द मार्केट बाय अ मार्जिन. सो नाउ आई कम टू योर पर्टिकुलर क्वेश्चन, और मैं उसके नंबर्स जो हैं आपके सामने इस सारी चीज में इनपुट करूंगा. एवरीवन हैज देयर ओन जर्नी एंड यू नो विद रिगार्ड्स टू देयर जर्नी उनके आउटकम्स भी डिफरेंट डिजायर्ड आउटकम्स होते हैं और डिफरेंट तरह की चीजें होती हैं जो वो चाहते हैं. सो अगर हम इसके अंदर 5 मिलियन की अमाउंट इनपुट कर दें, एंड व्हाट्स द मंथली दैट यू मेंशन्ड? Monthly, if I have, say, let's say if we're doing 50,000 per month for the एंड लेट्स next से हम year, इसको फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स देख लेते हैं. 5 years सो इन कर द लें नेक्स्ट, हाँ, सो इन द नेक्स्ट 5 इयर्स आपने मेरे साथ जो इन्वेस्ट किया होगा दैट वुड बी अराउंड 8 मिलियन. ठीक है, लेकिन इफ आई कंसिस्टेंटली ग्रो एट 28% तो ये अराउंड 2 करोड़ 40 लाख बन सकता है. चलिए ठीक है brother, this is good. बस ठीक है, Yep. मैं I will get that offline बाद में. Thank you. थैंक यू जी. जी एजाज साहब. एजाज साहब, यू रेज्ड योर हैंड. अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए. मैंने कहा आपका कंसेप्ट ठीक है, बहुत अच्छा है, चीजें अच्छी हैं, क्वालिटी भी है और सब कुछ है, लेकिन मुझे एक कंसर्न नजर आया है कि आपके रेट्स जो है मार्केट से काफी ज्यादा हाई हैं, अच्छा. जिसकी वजह से So- इन्वेस्टमेंट को ज्यादा फिजिबल नजर नहीं आती. रेट्स बहुत ठीक है. हाई हैं. अगर हम स्पेशली एक रावलपिंडी, मैं आपके हम- ऑफिस भी गया हूँ इधर DHA जी, जी. में, सेक्टर जी, F में, तो प्रॉपर्टी के आपके जो रेट्स हैं वो मार्केट से ज्यादा है. इसकी क्या वजह सही है? है. सो आप मुझे कंपैरिजन देना कि मेरे इस प्रोडक्ट का रेट ये है जबकि मार्केट का रेट ये है. सो मैं आपको बेस्ड ऑन सम नंबर्स ही ये चीज डिफाइन कर सकूंगा. कह देना तो एक जी, सब्जेक्टिव आपकी- बात है. जी जी. जी, बात आपकी ठीक है. आपका रेट कम से कम 50,000 रुपये पर फुट है, 60,000 पर फुट है, जबकि मार्केट में 20-25 हजार फुट पे वही चीजें मिल जाती हैं. आप मुझे बताएं मेरे पूरे प्लेटफॉर्म पे किस प्रॉपर्टी का रेट 60,000 रुपए फुट है? ये आपको पता ही है. मैं जो मुझे आपके ऑफिस ने बताया मैं उसी की बुनियाद पर सही. बात कर रहा हूँ. मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ, सबको दिखा सकता हूँ. जी करें क्यों नहीं, सब देखें. जी सब जी बिल्कुल, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ. आई वुड वांट कि हर बंदा वी कैन टेक अ लुक एट दिस. सो ये प्लेटफॉर्म है एंड आई लॉग इन टू माई प्रोफाइल. आई विल शो यू कि अभी तक मेरा प्लेटफॉर्म किस तरह से, मेरा पर्टिकुलर पोर्टफोलियो किस तरह से ग्रो हुआ है एंड हाउ कैन यू लुक एट द प्रोजेक्ट्स. सो ये ना 2-3 सेगमेंट्स में हमने प्रॉपर्टीज को ब्रेक डाउन किया हुआ है. डेवलपमेंटल प्रॉपर्टीज आर द वंस जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है. सो एलिमेंट्स इज अ फुली फर्निश्ड होटल अपार्टमेंट बिल्डिंग जिसका रूमी के साथ हमारा एग्रीमेंट भी हो चुका है. 17,000 रुपीज पे ये प्राइस. अगर आप इस प्रॉपर्टी को व्यू करेंगे या किसी भी प्रॉपर्टी को व्यू करेंगे तो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स कि इसके अंदर टोटल कितने स्क्वायर फीट्स हैं, इसकी क्या प्राइस, अभी करंट प्राइस क्या है, इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट्स हैं कि लार्जेस्ट क्या थी, एवरेज क्या थी, कितना बिक चुका है, कितना रहता है अभी, एंड उसके अगेंस्ट कितना काम हुआ है. एंड देन यू कैन सी ऑल द लीगल डॉक्यूमेंट्स ओवर हेयर, NOCs, FBR डॉक्यूमेंट्स, even SECP document for every property. And बेस्ड ऑन ऑल दिस इंफॉर्मेशन, सो NOC से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इनको इतने स्क्वायर फीट अलाउ भी हैं जितने ये बेच रहे हैं या नहीं. एंड देन यू गेट टू सी ऑल द वीडियोस एज वेल. सो अब हम रेट्स भी एक दफा सारी प्रॉपर्टीज के व्यू कर लेते हैं. सो एलिमेंट्स जो है वो 17,000 का है. अर्बन ड्वेलिंग्स जो है ये 16,000 का है. नथिया गली का प्रोजेक्ट आ गया है, ये हमारे पास ब्रॉड पीक है, ये 35,000 का है. इट्स अ फिनिश्ड फुली फर्निश्ड बिल्डिंग जिसमें दफ्तर खान के साथ 10 साल का एग्रीमेंट भी हो गया है. सिर्फ इसमें अभी फर्नीचर और हीटिंग कूलिंग सिस्टम्स डल रहे हैं. इट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट्स डेवलपमेंट. आमना होम्स हमारा प्रोजेक्ट, इसका 9,200 रेट है. देयर आर मैच्योर्ड प्रॉपर्टीज एज वेल जो बन चुकी हैं, जो रेंट दे रही हैं. सो नथिया गली वाला ये प्रोजेक्ट क्योंकि फुली सोल्ड आउट है तो ये आप कह रहे हैं कि आप किसी बंदे से रब्ता करें, अगर कोई बेचना चाहेगा तो बता देंगे. ऑन एवरेज इसका 22,000 रेट चल रहा है. एक्रोन हमारा बहरिया फेज 7 में कंप्लीटेड प्रोजेक्ट है जिसमें दफ्तर खान हमारा टेनेंट है.
for the last 3-4 years. इसका average rate हमारा 26-27 है. This is also completely sold out. And this is something जो अभी available है. ये लाहौर में हमारी एक office building है. Corporate offices हैं. So this is generating 120 rupees का rent per square feet. 10% ये हर year बढ़ता है. और इसकी price तकरीबन हमारी 28,000 rupees per square feet है. So ये आई थिंक ये ओवरऑल तरीक़ेकार है हमारे प्लेटफॉर्म को गो थ्रू करने का. सो आई थिंक हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं. और थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन हु जॉइंड इन टुडे. आई वुड वांट कि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे जाके हमारे प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करें. वेबिनार 15 का एक प्रोमो कोड है. दैट्स अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड, फ्रॉम माय टीम साइड टू ऑल ऑफ यू दैट यू नो गेव अस your time and you listen to all of this. I hope with every information that we have in our mind, we know where to place ourselves in the times to come. So इस code को use करके you can get flat 15% discount on all our projects that are present. So इसको आप use करें and inshallah see you guys in the next webinar. Thank you. Take care. Allah Hafiz. Thank you everyone for joining. Allah Hafiz.